فلسطین یا پھر اسرائیل، آپ کس کو چوز کرو گے؟ یہ بہت ڈیفیکلٹ سا کوسچن ہے، لیکن میرے پاس اس سوال کا جواب ہے۔ If you are non-Muslim, then some of you will definitely choose Israel. But if you are the Muslim, then you will definitely choose فلسطین، کیونکہ مسلمانوں کی ڈکشنری میں فلسطین نام کا کوئی کنٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک زور زبردستی سے بنائی گئی ایک انلیگل اور ناجائز ریاست ہے۔ اصل میں جہاں آج اسرائیل موجود ہے، کبھی یہ فلسطین ہوا کرتا تھا۔ فلسطین ایک مسلم کنٹری تھا۔ آخر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ کنٹری جو مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا، لیکن پھر وہ مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود بھی جیوز کا ملک اسرائیل بن گیا؟ اس سب کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ کیا اسرائیل کی فارمیشن میں دوسرے اسلامک کنٹریز نے سپورٹ کیا تھا یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسطین سے لے کر آج کے بنے ہوئے ناجائز اسرائیل تک پوری ہسٹری کو جانیں گے، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ Al-Aqsa Mosque compound, الحرم القدسي الشريف. Temple Mount. It's a place that's always in the news. We have another session of violence here, right in front of the Al-Aqsa compound. This is such a sensitive religious site, isn't it? One of the flashpoints that led to the 11-day conflict. Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir has visited the Al-Aqsa Mosque compound. M2 ڈسکوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ان دونوں کنٹریز کے اس کنفلکٹ کے پورے سینیریو کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا پڑے گا۔ ہسٹری میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جو یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، and that one person is ہٹلر۔ جی ہاں، ہٹلر کا نام سنتے ہی یہودیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، ان کے زخم بالکل تازہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ آج تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ پاور میں آنے کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1800 تک ہٹلر نے بہت سے جیوز کو مارا۔ وہ جس کنٹری میں بھی رہتے انہیں ہیٹ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کا پبلک پوائنٹ پر آنا بین تھا، وہ نہ کلب جا سکتے تھے، نہ اسکول اور نہ ہی مارکیٹ۔ غرض وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ 1800 کے آخر میں دنیا بھر میں رہنے والے بہت سے جیوز کو یہ خیال آیا کہ اب کوئی بھی کنٹری ہمیں اپنا شہری نہیں مانتا، اگر ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں اپنا ایک الگ ملک بنانا پڑے گا، ایک جیوز کنٹری جس میں صرف ہم ہوں گے اور کوئی نہیں۔ ہسٹری میں ایک جیوز گزرا ہے جس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ اس نے 1896 میں اپنے ایک پمفلٹ کو شائع کیا جس میں اس نے کہا کہ جیوز کے لیے بھی ایک الگ کنٹری ہونا چاہیے۔ اس نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کا آغاز کیا جس کا نام تھا زائونزم۔ بہت سی دوسری پولیٹیکل موومنٹس اس زائونزم کو سپورٹ کرنے لگی۔ اس کے بعد 1881 میں پہلی بار ایک بہت بڑی تعداد میں جیوز فلسطین کے ایریا میں مائیگریٹ کر جاتے ہیں۔ اب جیوز فلسطین میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹس بناتے ہیں، یعنی وہاں پرماننٹ طور پر رہنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس پوائنٹ پر آپ کا ایک کوسچن تو بنتا ہے کہ جیوز نے فلسطین کے ایریا کو کیوں چوز کیا؟ وہ کسی اور جگہ بھی تو جا سکتے تھے۔ اس کی وجہ تھی جیوز کی ہولی پلیسز کا ہونا، کیونکہ یروشلم جیوز کی سب سے ہولیسٹ پلیس ہے ان کے نزدیک۔ جب جیوز فلسطین کی طرف مائیگریٹ ہوئے تو یہ سارا ایریا نہ غازہ تھا اور نہ ہی ویسٹ بینک، بلکہ یہ سارا ایریا صرف ایک کنٹری فلسطین تھا، اور یہ فلسطین اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھی۔ اس وقت فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اوٹومن امپائر کے اندر کرسچین، مسلمز اور جیوز ایک حد تک بڑے امن و ایمان کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، ان میں کوئی اتنا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس وقت اسلام غالب تھا، اور اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے۔ اس سب کے بعد 1915 کا ٹائم آتا ہے، اور یہ وہ ٹائم تھا جب ورلڈ وار 1 شروع ہوتی ہے۔ برٹش، فرینچ اور کچھ عرب ریولیشنریز مل کر اوٹومن امپائر کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ اب یہاں انگریز یعنی برٹش ایک چلاکی کرتے ہیں، وہ عرب ریولیشنریز سے کہتے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں فلسطین کا علاقہ دے دیں گے۔ یہ پیشکش عرب ریولیشنریز کے لیے ایک انمول خزانے کی طرح تھی۔ بیسیکلی یہ عرب اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ سیریا سے لے کر یمن تک ایک ہی یونائٹڈ عرب کنٹری ہو جس میں فلسطین کا ایریا بھی آتا ہے۔ اب دوسری طرف برٹش جیوز کے ساتھ بھی یہی پرومس کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک رہو تاکہ ہم ایک الگ ملک، ایک
ज्यूइश कंट्री बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। अब इन दोनों प्रोमिसेस के बाद ब्रिटिश एक और चालाकी कर जाता है, वो साइड ही साइड में फ्रेंच से एक सीक्रेट डील करता है। जैसे ही वर्ल्ड वार 1 खत्म होती है तो इसमें ओटोमन अंपायर हार जाती है और पूरे मिडिल ईस्ट को ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में आधा आधा बांट लेते हैं और फलस्तीन का सारा एरिया ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1918 से लेकर 1948 यानी तकरीबन 40 सालों तक फलस्तीन का एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। इसके बाद जर्मनी में हिटलर पावर में आ जाता है और उस टाइम मिलियंस ऑफ ज्यूज को सरेआम कत्ल किया जाता है। जर्मनी में कोई भी ज्यूज नजर आता है तो उसे मार दिया जाता। इसीलिए ज्यूज अपनी जान को बचाने के लिए जर्मनी से भाग जाते हैं। कुछ ज्यूज तो अमेरिका में पनाह हासिल करते हैं और कुछ फलस्तीन की तरफ भाग जाते हैं। हिटलर के दौर में जर्मनी से जितने भी ज्यूज भागे उनमें सबसे बड़ा नंबर फलस्तीन में जाने वालों का था। उस वक्त फलस्तीन ब्रिटिश के कंट्रोल में था। कुछ ज्यूज को तो फलस्तीन में आने दिया जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद फलस्तीन में आने के लिए ज्यूज को रोका जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। इस सारे सिनेरियो के दौरान फलस्तीन के अंदर एक फलस्तीन नेशनल मूवमेंट का आगाज होता है। 1940s में ही अब फलस्तीन के लोग भी ब्रिटिश से आजादी चाहते हैं। 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट फलस्तीन के एरिया से निकल जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि ज्यूज अपना एक अलग कंट्री बना लो और फलस्तीनियों तुम अपना एक अलग कंट्री बना लो, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। अब ये सारी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस की है, वही तुम्हारे इन मामलात को हल करेगी। मेरे हाथ खड़े हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कुछ अल्फाज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसके बाद यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान को तैयार करती है जिसके मुताबिक कितना एरिया ज्यूज को दिया जाए और कितना एरिया फलस्तीन को। 1947 में ये पार्टीशन प्लान रिलीज किया जाता है जिसके मुताबिक 45% एरिया अरब स्टेट यानी फलस्तीनियों को दिया जाता है, जबकि 55% एरिया ज्यूज को दिया जाता है। जबकि जेरूशलम जो कि ज्यूज, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए एक होली सिटी है, ये एरिया यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रहेगा। इसको ना फलस्तीन में शामिल किया जाएगा और ना ही इजराइल में। अब ज्यूज इस प्लान को मान लेते हैं और वो अपने नए कंट्री का नाम इजराइल रखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है एक इलीगल और नाजायज रियासत इजराइल का। लेकिन इन सब के बावजूद जो दूसरे अरब नेबर कंट्रीज होते हैं वो इस प्लान को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। इसलिए वो इजराइल के खिलाफ जंग का आगाज करते हैं। इस जंग को नाम दिया जाता है फर्स्ट अरब इजराइल वार ऑफ 1948। ये जंग पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम थी क्योंकि 5 से ज्यादा अरब मुमालिक मिलकर एक नए बनने वाले छोटे से मुल्क इजराइल के साथ लड़ रहे हैं। अब ज्यूज इस जंग को हर सूरत हाल में जीतना चाहते थे क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने देखा है कि दुनिया उनके साथ कैसा ट्रीट करती है। वो जानते थे कि अगर हम ये जंग हार गए तो हमारा हाल ऐसा ही होगा जैसे हिटलर ने किया था। आखिर काफी टाइम तक ये जंग जारी रहती है, लेकिन बदकिस्मती से इजराइल ये जंग जीत जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि एक छोटा सा कंट्री 5 बड़े कंट्रीज को एक जंग में हरा देता है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी और वो ये थी कि अमेरिका इजराइल को भरपूर सपोर्ट कर रहा था। 1949 में ये जंग खत्म होती है। अब जो पार्टीशन प्लान यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया गया था उसकी धज्जियां उड़ा दी गई और इजराइल ने फलस्तीन के बहुत से एरियाज पर कब्जा कर लिया और कुछ एरियाज अरब कंट्रीज के पास चले जाते हैं, जैसे कि गाजा स्ट्रिप का एरिया इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का सारा एरिया जॉर्डन के पास चला जाता है। यानी अब फलस्तीनियों के पास रहने की कोई जगह न बची। इस जंग के दौरान कम से कम 7 लाख फलस्तीनी अरब कंट्रीज में जाकर रिफ्यूज लेते हैं। इसके बाद 1967 में एक बार फिर अरब और इजराइल में जंग होती है और इस जंग को एक बार फिर बदकिस्मती से इजराइल जीत जाता है और इस जंग को जीतने के बाद इजराइल न सिर्फ गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के इलाके को हासिल कर लेता है और इसके साथ साथ इजिप्ट के इस इतने बड़े एरिया पर भी कब्जा कर लेता है। अब फलस्तीन के लोग इजराइल में एज अ मिनोरिटी कंसीडर किए जाने लगे। अब वो भी अपने एक अलग मुल्क के लिए जदोजहद करते हैं। इसी रीजन की वजह से 1964 में फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली सिर्फ एक मकसद था कि आर्म्स यानी हथियारों के जरिए से इजराइल को तबाह करना, क्योंकि इजराइल एक नाजायज रियासत है और इसको तबाह करना बहुत जरूरी है। इसी रीजन की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है इजराइल और यूएसए की तरफ से। असल में ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी जो सिर्फ अपने मुल्क की आजादी चाहती थी। 1963 में एक बार फिर तीसरी अरब इजराइल वार होती है। ये जंग दोनों कंट्रीज के लिए एज अ टाई मैच के तौर पर काम करती है। 1979 में तमाम अरब मुमालिक का डाउन शुरू हो जाता है। इसी टाइम में इजिप्ट और इजराइल के दरमियान एक सक्सेसफुल पीस टॉक हो जाती है। यानी इजिप्ट वो पहला कंट्री था जिसने इजराइल को ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन अब यूएई और बहरीन वो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इजराइल को ऑफिशियली तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। इजिप्ट और इजराइल में पीस टॉक होने के बाद इजराइल इजिप्ट को उसका सारा एरिया वापस कर देता है। उसके बाद दोनों पीएम्स को एक नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है इस पीस टॉक के बदले में। इसके कुछ
कुछ टाइम के बाद इजिप्ट के इस प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया जाता है। इजिप्ट के लोग कहते हैं कि इजिप्ट कैसे इजराइल को एक्सेप्ट कर सकता है, ये जानते हुए भी कि ये एक नाजायज रियासत है। इस सारे वाकये को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और अभी तक गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में है। 57 इस्लामी मुमालिक मिलकर भी इस एक चूंटी भर के कंट्री को हरा नहीं सकते। उसकी सिर्फ एक वजह और वो है ईमान की कमजोरी। अब इसके बाद ज्यूज जो होते हैं वो वेस्ट बैंक के एरिया में जाकर रहने लग जाते हैं और इजराइल की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करती है वेस्ट बैंक में रहने के लिए, उनको घर बनाकर देती है और वो भी आसान इकसात पर जिनके किराए बहुत कम होते हैं। ज्यूज वेस्ट बैंक में जाकर अपनी परमानेंट सेटलमेंट बनाते हैं और वहां परमानेंटली तौर पर रहने लग जाते हैं। अब अगर आपको यूनाइटेड नेशन का वो पार्टीशन प्लान याद हो तो ये एरिया फलस्तीन का था, यानी ज्यूज का यहाँ सेटलमेंट्स बनाना एक गैर कानूनी काम है। अब 1992 में इजराइल को एक अच्छा प्रेसिडेंट मिल जाता है जिसका नाम है यत्जिक रबिन। ये कहता है कि पीएलओ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपना एक अलग कंट्री चाहते हैं जैसे हमने अपना कंट्री मांगा था। तो इसमें गलती क्या है? हमें उनका कंट्री उन्हें जरूर देना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में इजराइल ऑफिशियली तौर पर पीएलओ को रिकॉग्नाइज करता है और इसके रिटर्न में पीएलओ भी इजराइल को एज अ सेपरेट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेती है। 1993 में कुछ प्लान्स तैयार किए जाते हैं कि हम दोनों कंट्री कैसे खुद को अलहदा करें और हम कैसे पीसफुली रह सकते हैं। 1994 में पहली बार फलस्तीन की गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसका नाम था पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी, लेकिन इस टाइम तक पूरे वेस्ट बैंक में ज्यूज का कब्जा था जिसको इजराइल की गवर्नमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया था। इस वक्त फलस्तीन के लोग जगह जगह टुकड़ों में बंटे हुए थे। अब वेस्ट बैंक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एरिया ए, बी और सी, जिसके मुताबिक एरिया ए वो है जिसको फलस्तीन की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और एरिया बी वो है जिसे फलस्तीन और इजराइल की गवर्नमेंट्स मिलकर कंट्रोल करेंगी और एरिया सी को इजराइल की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इसके जरिए से फलस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप सिर्फ चंद इलाकों में दिए जाते हैं जहां वो अपना मुल्क बना सकेंगे। अब इस सब के बाद मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन कुछ ज्यूज ने मिलकर अपने इस पीएम को मार दिया क्योंकि वो फलस्तीन को आजाद कर चुका था। लेकिन ज्यूज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि इजराइल सिर्फ ज्यूज का है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता। इसके बाद हालात मजीद बिगड़ते गए जिनको आज तक कंट्रोल न किया जा सका। इस वाकये के 5 से 6 साल पहले फलस्तीन में एक हमास ग्रुप की एंट्री होती है जो कहता है कि ये पीएलओ कैसे इजराइल को तस्लीम कर सकती है। इजराइल फलस्तीन का हिस्सा है, ना कि फलस्तीन इजराइल का। दोनों तरफ से हालात मजीद बिगड़ना शुरू हो गए। इजराइल में ज्यूश ने मिलकर अपने प्रेसिडेंट को मार दिया और फलस्तीन में हमास ग्रुप ने पीएलओ को खत्म करके सारा कंट्रोल खुद ले लिया। इस वाकये से हालात इस कदर खराब हो गए कि फलस्तीन में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया। आए रोज इजराइल मुसलमानों को तजलील करता है। हमास और इजराइल के दरमियान गहमा गहमी हर वक्त तनी रहती है। कभी इजराइल हमास पर अटैक करता है तो कभी हमास ग्रुप इजराइल पर रॉकेट फायर कर देता है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने यरूशलेम में मौजूद बैतुल मुकद्दस पर हमला किया था। बहुत से मुसलमानों को कैदी बनाया गया और बहुत से मुसलमान जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस वाकये से सिवाय लेबनान के किसी और इस्लामिक कंट्री को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपने ज़ौक़ में मस्त है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इन जालिमों को हिलाक करे। आमीन। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज यार इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जिनको फलस्तीन और इजराइल की हिस्ट्री का नहीं पता वो भी इसको समझ सके।